समय हमारे साथ बने रहे, तो ये हमारे लिए काफी ऑनर का विषय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि कल से हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक रिफ्रेशर कोर्स 7 डेज रिफ्रेशर कोर्स शुरू हो रहा है, जो 22 जून से 28 जून तक कंटिन्यू चलता रहेगा सेम टाइम पे। तो आप सभी जो सुन रहे हैं, जो आज पार्टिसिपेंट है, वो कल भी हमें ज्वाइन करें। उसमें अगर एक भी क्लास छूट जाता है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में कहीं ना कहीं हमारा रह जाएगा चीज़ें। तो उसके लिए भी आज आप लोग को इनवाइट कर रहा हूं मैं, और साथ ही आग्रह करता हूं अपने वाइस प्रेसिडेंट जी से कि सर आप 2 शब्द कहें और सर के बारे में इंट्रोडक्शन दें। धन्यवाद मुकेश जी। वेलकम अनिल सर। नमस्कार वेलकम परमिंदर जी, आप पटना से जुड़े हमारे साथ। तो आज का सेशन हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं। मैं बहुत जल्दी सर का इंट्रोडक्शन करा के फिर हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर अनिल गर्ग is international motivational trainer, corporate coach, sales guru, experienced professional counselor, strategic thinker, and empowering leader. Sir has proactive, diligent, and result-oriented top-ranking professionals with 34 years of experience in corporate and academic world. In today's scenario, understanding about the motivation and being motivated under this lockdown situation, I feel that this is very important for every professional and for everyone. A new term has been coined recently after the death of Sushant Singh Rajput, that adverse quotient is very important. Yes. So I feel that sir should also touch on that part, because nowadays we are not trying to make paths for our children. We are trying our children to make so that they can make their own path. So with this word, I'm handing over mic to Anil sir to start on. सर सचिन जी, बीच में इंटरप्ट करूंगा। मैं आज के मॉडरेटर सीएस शुभम जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आई एम सो सॉरी सर। नहीं, अरे सर एक ही बात। मैं सचिन शुभम भाई 2 शब्द अनिल जी के बारे में कहें और इस सेशन की शुरुआत कराएं। ओवर टू यू शुभम जी। Thank you so much, Rishu Bhaiya, and for giving me this opportunity. And it's very great pleasure कि मैं इतनी बड़ी एक हस्ती को कहूँ तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि सर के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग. So I just want to say some words about the sir. Dr. Anil Kumar Garg sir is an international motivation trainer, corporate coach, sales guru, experienced professional, counselor, strategic thinker, and the empowering leader. If we talk about the career synopsis about the sir, he is a top-ranking professional with 34 years of experience in corporate and academic world. So सर एक्सपीरियंस की बात है तो इतनी तो शायद हमारे यहाँ कई पार्टिसिपेंट की एज भी नहीं है जितना सर को एक्सपीरियंस है. एंड ही ऑलरेडी वर्क विद नंबर ऑफ ब्रांड्स लाइक कोरिस, पिडिलाइट, भारती विद्यापीठ, ARMIET, ISBM at the senior position. And there's lots of achievements which are achieved by the sir, and it's very great pleasure to announce convey that achievement by me. The first, I can say that he is instrumental in transforming the loss-making division into a profit-making division. He already delivered 1100 plus training shops across India and globe on the soft skills. He is the winner of trophy from Brother International Japan in Dubai during Gulf Distributors Meet. He got highest appreciation from the CEOs for setting up examples of CRM. So there are number of things which we can convey. और सर के बारे में अगर डिटेल में बताना चाहेंगे तो आई थिंक आधा सेशन वैसे ही हम डिले हैं और आधा सेशन और हमारा निकल जाएगा. तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनिल गर्ग जी, सर आप प्लीज अपने सेशन से अपनी जो आपने नॉलेज है उसको हमारे साथ डिलीवर करें. एंड इट्स वेरी प्लेजर टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much for nice introduction, Shubham. Good evening to everyone. At the outset, I'm thankful to GCP and all the authorities of DCP, Mukesh ji, Rishu ji, Sachin ji, Shubham ji, Praveen ji also joined. So thank you so much for giving me this opportunity to speak to such a wonderful audience, right? It's amazing audience, all professionals. So my topic for today is that managing people, and second topic is planning versus implementation. Normally I give one topic in 90 minutes, but Rishi ji told me, no भाई हमारे पास जो लोग हैं उनका टाइम बहुत कीमती है, आप 2 घंटे लीजिए लेकिन 2 टॉपिक कवर कीजिए. मैंने कहा ठीक है जी, 2 टॉपिक कवर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है.
तो पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। पहला टॉपिक है मैनेजिंग पीपल। अच्छा, उसके पहले मैं आपको आज देखिए, आज वर्ल्ड योगा डे है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज फादर्स डे भी है, तो सारे फादर्स जो आज ग्रुप में हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है और एक अच्छे फादर बने रहे, इसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैनेजिंग पीपल। अच्छा, व्हाई वी नीड टू मैनेज पीपल एंड किसको मैनेज करने की बात करूं मैं आपसे? शुड वी मैनेज अवर बॉस, शुड वी मैनेज अवर पीयर्स और शुड वी मैनेज अवर सबऑर्डिनेट्स? किसको मैनेज करने की बात करूं? मेरे मन में 3 थॉट आ गई कि इसको मैनेज करने की बात करूं। तो देखो, बॉस को जहां तक मैनेज करने की बात है, पेरेंट्स एंड बॉस वी ऑलवेज गेट बाय डिफॉल्ट। वी कैन नॉट चूज अवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट चूज अवर बॉस। ना हम पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं, ना बॉस को चूज कर सकते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। 2 चीजें जीवन में, थिंग्स वी कैन चेंज, वी शुड चेंज। जो चेंज कर सकते हैं वो जरूर चेंज करना चाहिए, बट विच द थिंग्स विच वी कैन नॉट चेंज वी शुड एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली। तो ठीक है, जो बॉस हमको मिला है उसको एक्सेप्ट करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। और आपने सबने सुना होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ ही इज रॉन्ग, गो टू द नंबर 1, ही इज ऑलवेज राइट। तो बॉस को हैंडल करने का एक ही तरीका है, जैसा बॉस बोले, जैसा बॉस का गाना वैसा अपना बजाना। बॉस ने गाना सुनाया परदेशी परदेशी जाना नहीं, तो हमको भी परदेशी परदेशी जाना नहीं गाना है। हमको ये नहीं गाना है कि मैं तो चला परदेश, नो। बॉस के साथ ट्यूनिंग करना, बॉस के साथ एकात्मता रखना, यही एक मंत्र है बॉस को हैंडल करने का। यू कैन नॉट चेंज द बॉस, यू कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, बट यू कैन नॉट चेंज द बॉस, राइट। दूसरा है हमारे पीयर्स, जो हमारे साथी लोग हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा हो, कैसे हम उनको मैनेज करें। अरे भाई, अपनी वाइफ को आप कैसे मैनेज करते हो, अपने स्पाउस को आप कैसे मैनेज करते हो, है ना? वो आपकी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। वैसे आपके जो पीयर्स हैं वो भी आपके पार्टनर्स हैं। जैसे आप अपने घर में अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को मैनेज करते हो, वैसे ही अपने पीयर्स को मैनेज करो, बस। इससे ज्यादा कुछ मंत्रा नहीं है। अब जो बात आती है वो है सबऑर्डिनेट्स की, हाउ टू मैनेज पीपल। Why we need to manage the people? We need to manage the people because people don't do what they are supposed to do. जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसीलिए इतने मैनेजर चाहिए हमको हिंदुस्तान में। मैं चाइना कम से कम 50 बार गया हूँ अपनी कंपनी के काम से। मैंने कम से कम भी 150 से 200 प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में लॉन्च किए। मैं चाइना की कम से कम भी 70-80 फैक्ट्री मैंने विजिट किया है। मैंने एक चीज वहां नोटिस करी, जब मैं फैक्ट्री में जाता हूँ तो जितने वर्कर वहां काम कर रहे वो सब नीचे ही देखते रहते, अपने काम में ही बिजी रहते, कोई चेहरा उठा के देखता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आ जाए फैक्ट्री में तो सारे वर्कर नजर उठा के उधर देखते। चाइना में एक वर्कर ने मुझे नजर उठा के एक फैक्ट्री में नहीं देखा आज तक। तो मैंने जब पता लगाया तो पता ये था, उनको डेली वेजेस या मंथली सैलरी नहीं मिलती है, उनको एक्टिविटी बेस्ड रेम्यूनरेशन मिलता है। जैसे दिन भर में आपको 100 पीस प्रोड्यूस करना है, तो 100 पीस अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो 100 RMB आपको मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर 90 प्रोड्यूस किया तो 90 RMB मिलेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड उनका रेम्यूनरेशन होता है, इसके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, परफॉर्मेंस हाई होती है। तो ये मैंने उनसे सीखा। हमारे यहाँ इंडिया में मैनेजर हमको क्यों चाहिए? वी नीड मोर मैनेजर्स बिकॉज पीपल डोंट डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते, इसलिए हमको मैनेजर की जरूरत पड़ती है। नाउ वी आर मैनेजर, सो इफ वी आर ए मैनेजर वी शुड नॉट बी टू मच बॉसी। ये बॉसी वाला जो एटीट्यूड होता है ना, उससे आदमी काम ठीक से नहीं करता है। देखो एक चीज मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, आप ये देखो कि आपके ना ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम क्यों कर रहे हैं। दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर सपोज टू वर्क, दे हैव टू वर्क, और दे आर वर्किंग बिकॉज दे लव टू देयर वर्क। बस यही फर्क लाना है आपको। क्या वो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं क्योंकि उनका काम करना मजबूरी है, उनको अपना घर चलाना है, उनको सैलरी चाहिए, इसलिए काम कर रहे हैं, या वो इसलिए काम कर रहे हैं कि वो अपने काम को प्यार करते हैं? बस इस फर्क को आप समझ लीजिए। उनको ऐसा इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट नहीं करना है, इंस्पायर। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आप किसी को कर ही नहीं सकते, एवरीबॉडी सेल्फ मोटिवेटेड। कितना सैलरी दे दो, कुछ भी कर दो, मोटिवेशन इंस्पायर करिए बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। देखो एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की बुक में मैंने एक बात पढ़ी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। जो लोग अपने बारे में अच्छा फील करते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी बात है, पीपल हु प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। और जो लोग अच्छा रिजल्ट देते हैं वो अपने बारे में
अच्छा फील करते हैं। तो हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छा फील कराना है, बेटर फील कराना है, बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑनर्स होना चाहिए। ये अथॉरिटी टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहाँ बॉस जो बोलेगा वही राइट है, एवरीथिंग जो बॉस ने बोल दिया, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जहाँ पे पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप लोगों को साथ लेके काम करते हैं, वहां पे देखिए प्रॉब्लम्स कम होती है। देखो मैंने 34 साल कॉर्पोरेट में काम किया, पीडीलाइट में काम किया, कोरस में काम किया। आई वाज हैंडलिंग द होल डिवीजन, आई वाज इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मिंग द लॉस मेकिंग डिवीजन इनटू प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन। आई बिलीव्ड इन वन थिंग, either you believe in consensus or you create consensus। या तो आप सबके साथ जो बोल रहे हैं उसके साथ सहमत हो जाओ, या अपनी जो बात है उससे सबको सहमत करा लो। सहमति होना जरूरी है। चाहे तो आप सहमत हो जाओ लोगों की बातों से, या आपकी बातों को आप लोगों को सहमत करा लो। बल्कि सहमति से जो काम होता है, सहमति से जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वो ऑर्गेनाइजेशन विनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीडियोकर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में एक ही फर्क है कि ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, वहां पे प्यार से लोग काम करते हैं, बिलोंगिंगनेस है, अपनापन है। हर एम्प्लॉय को लगता है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं। वो फीलिंग आते से ही उस एम्प्लॉय का पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखो ये ह्यूमन रिसोर्स इज सच एन इंपॉर्टेंट असेट्स विच इज नेवर शोर इन द बैलेंस शीट। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स कभी बैलेंस शीट में शो करते हैं क्या? लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है इस पे। पीपल ओनली रन द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ व्यक्तियों से ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है। लेकिन वो व्यक्तियों को हम कैसे इंस्पायर करें, ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज नॉट टेस्टेड इन ए नॉर्मल वेदर। सब गुड्डी 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 चल रहा है, उसमें क्या लीडरशिप है? लीडरशिप इज ऑलवेज टेस्टेड इन स्टॉर्मी वेदर। सब अभी स्टॉर्मी वेदर है, कोविड आया है, 4 महीने से फैक्ट्री बंद है, सब ऑफिस बंद है, एकदम स्टॉर्मी वेदर है। दिस इज द टाइम टू एग्जामिन योर लीडरशिप। यही आपका सही समय लीडरशिप की परीक्षा का। कैसे आप खड़े होकर उतरते हो, कैसे अपने लोगों को इंस्पायर करते हो, कैसे उनका फियर उनसे बाहर निकालते हो, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को वापस आप पटरी पे लाते हो। दिस इज ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। यही आपके लिए चैलेंज है। तो देखिए एक टेंडेंसी है, मैंने कई लोगों को देखा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको बोलते हैं कैप्शियस कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी। कैप्शियस कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी क्या होती है? एक्सक्लूसिवली एंड एक्सेसिवली fault finding tendency. Exclusively and excessively fault finding tendency is known as captious complex tendency. आप देखिए बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है बॉसेस की कि वो एम्प्लॉय को जज करते हैं, पकड़ते हैं when he is doing something wrong। अरे देखो मैंने उसको सिगरेट पीते हुए देखा, अरे देखो वो शॉप फ्लोर पे काम छोड़ के चाय पी रहा था। We have a tendency to catch people doing something wrong. Why don't we develop a tendency to catch people doing something right? हम क्यों उनको गलत काम करते समय पकड़ते हैं? हम क्यों ना उनको अच्छा काम करते समय पकड़े? जब वो गलत काम कर रहे हैं इग्नोर करो, और जब अच्छा काम कर रहे हैं तब जाके उनको पकड़ो और जाके उनकी पीठ पे थपथपी दो। हैव यू एवर गिवन पेट ऑन देयर बैक? कभी आपने अपने एम्प्लॉय की पीठ पे थपथपाई दी है? 50 लोगों के सामने शॉप फ्लोर पे जाके, ऑफिस में आप अपने केबिन में बैठे रहते हैं, कभी केबिन के बाहर राउंड लगाइए। जो गलत काम कर रहे हैं उसको भूल जाइए, जो अच्छा काम कर रहे हैं जाइए और उनकी ओ माय डियर आशीष, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द असेट टू माय ऑर्गेनाइजेशन। 50 लोगों के सामने। देखिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, रिप्राइमेंडिंग इन प्राइवेट, प्रेज इन पब्लिक। अगर आपको निंदा करनी है, उसको सुधारना है, उसको रिप्राइमेंड करना है, मेंडिंग करना है, तो प्राइवेट में केबिन में बुला के करिए। लेकिन तारीफ करनी है तो वो सबके सामने कीजिए। जनरली हम लोग उल्टा करते हैं, हम अपना बॉसेस में दिखाने के चक्कर में उसको 50 लोगों के सामने, अरे तू ये क्या कर रहा है, गलत काम करता है, ऐसा नहीं चलेगा, मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। अरे भाई आप तो बॉस हो यार, क्या दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बॉस हो ही। सो बेटर टू कैच पीपल डूइंग समथिंग राइट एंड प्रेज देम इन द पब्लिक, गो एंड गिव देम पैट ऑन देयर बैक एंड लिसन टू देम। डू वी लिसन टू अवर जूनियर्स? क्या हम उनकी बात सुनते हैं? क्या कभी हमने उनसे कंसल्ट करने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक चल रहा है?
देखिए बेस्ट तरीका, मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को एक ही बात बोलता था, भाई आप लोग महीने में एक मीटिंग तो मिनिमम होती थी हमारी, और उसमें सबसे पहला मेरा एजेंडा होता था कि आप लोग बताइए आपको मेरे से क्या क्या शिकायत है, मेरे से आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। 1-2 महीने 3 महीने कोई बोलता नहीं है, 4 महीने कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब आपका एक बिहेवियर होता है, जब आपको लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, वो बोलने लगते हैं सर आप उस बात पे चिढ़ जाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है, सर आपने वहां गुस्सा किया था मुझे अच्छा नहीं लगा। जब लोग आपके बारे में निगेटिव फीडबैक देने लग जाए ना, तो समझ लेना आपकी ऑर्गेनाइजेशन विनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के पथ पे जा चुकी है। जब लोगों में इतना करेज आ जाए कि वो आपके सामने आपकी निंदा कर सके, तो समझ लेना वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई पीछे धकेल नहीं सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लिसन टू देम। मैं एक एनालॉजी यूज करता हूं, गोल्फ आपने देखा होगा, गोल्फ में the only time you are not playing a wrong shot is the time when your sticks are in your backs, when your clubs are in your backs. गोल्फ में आप कोई भी रॉन्ग शॉट तब तक नहीं खेल रहे हो जब तक आपकी जो स्टिक है वो बैग में है। स्टिक बैग से बाहर आई तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू विल प्ले रॉन्ग शॉट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप सुन रहे हो तब तक कुछ गलती नहीं कर रहे हो। मेरे को लोग सेल्स गुरु के नाम से जानते हैं, 34 इयर्स मैंने सेल्स के ऊपर बहुत काम किया, तो लोग पीपल दे कॉल मी सेल्स गुरु। मैं अपने सेल्स वालों को एक ही ट्रेनिंग देता था, लिसन टू योर कस्टमर। कोई भी कस्टमर है पहले अपना जाके गाथा शुरू मत कर दो, मैं इतना बढ़िया प्रोडक्ट लाया हूँ, ये है वो है, अपनी गाथा शुरू, पहले उसकी सुनो, हाउ आर यू, कैसे हो, सब कुछ हो, पहले उसकी सुनो फिर अपनी बात करो। लिसन टू योर कस्टमर। दूसरा, मैंने उनको सेल्स की एक थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, 1 मिनट में कवर करता हूँ। सेल्स की बहुत सारी डेफिनेशन पड़ी होगी। सेलिंग मींस ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस टू ए कस्टमर हु नीड्स इट विद सम एक्सचेंज। मैंने कहा कुछ नहीं, सब फालतू है, फिलिप कोटलर वगैरह कुछ नहीं। सेलिंग इज सिंपल। मैंने बोला सेलिंग इज वन, दैट इज व्हाट इज सेलिंग। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आपको एंथुसियास्टिक होना है, आपको उत्साही बनना है और अपने उत्साह को अपने कस्टमर को ट्रांसफर करना है, यही सेलिंग है, बस और कुछ नहीं है। सेलिंग की एक ही परिभाषा है, आप कैसे अपने एंथुसियाज्म को अपने कस्टमर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उनकी सुनिए, उनकी बात सुनिए, उनसे सलाह लीजिए, अच्छा हो बुरा हो हर परिस्थिति में उनको साथ रखिए। तो देखिए वो कैसे जीवन में आपको काम करने लगते हैं, कैसे आपको आगे बढ़ाते हैं। कल मुकेश जी ने डेलीगेशन पे एक बात बोली थी कि डेलीगेशन 4-5 बार उन्होंने रिपीट किया था कि डेलीगेशन बहुत जरूरी है। मैं उसको थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहता हूँ, मुकेश जी ने बहुत अच्छे से कवर किया वो टॉपिक। डेलीगेशन के बारे में आपको मैं 3 चीजें बोलता हूं। डू नॉट डेलीगेट ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ अथॉरिटी। अगर आपने अथॉरिटी नहीं डेलीगेट किया, सिर्फ जिम्मेदारी डेलीगेट किया, तो वो डेलीगेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सो डेलीगेशन नंबर 1 इज ऑलवेज responsibility and authority both, number 1. Number 2, delegate authority and responsibility but keep accountability with you. आप उसको जिम्मेदारी भी दो, आप उसको अधिकार भी दो, लेकिन उसको बोलो अच्छा होगा तो सब तेरा, अगर खराब होगा तो मेरा। अगर तेरे से कुछ गलती हुई, कुछ नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अकाउंटेबिलिटी अपने साथ रखिए, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कीजिए। मैं कहता हूं डेलीगेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और तीसरी बात भी है डेलीगेशन के बारे में। पहली बात, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दीजिए। दूसरी बात, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए लेकिन अकाउंटेबिलिटी अपने साथ रखिए। और तीसरी बात यह है, शो द वे एंड गेट आउट ऑफ द वे। रास्ता दिखाइए और रास्ते से दूर हो जाइए। रोज रोज उसको पेम्परिंग नहीं करना, अरे तू ऐसा मत कर वैसा मत कर। उसको क्रिएटिविटी को पनपने के लिए कुछ मौका दीजिए। आप कोई काम को 10 साल से कर रहे थे, आपका एक तरीका था, हो सकता है वो आपके काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा, उसकी क्रिएटिविटी तभी जागृत होगी जब आप उसको एक समय देंगे कुछ करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है तुम करो। तो डेलीगेशन जितना हम करते हैं उतना हमारा बोझ कम होता है और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। सब लोग जब मिलके काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क ऑन ए सोलो प्लेयर। एक सिंगल आदमी से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशन चलती है पूरी टीम से, ग्रुप से, टीम वर्क से ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना। जैसे एक बैंड बाजे वाले होते हैं ना, ऐसे पूरा ग्रुप, एक आप बॉस है तो वैसे ही बैंड बाजे में एक मास्टर होता है, वो एक धुन बजाता है और बाकी साजिंदे सारी धुन बजाते हैं। ऐसे आप मास्टर हो, आप धुन बजाइए और देखिए कि आपकी धुन को सारे साजिंदे वही धुन बजा रहे हैं। तो सब लोग जब एक धुन बजाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर उठने लग जाती है। मेरी बात आपको अच्छी लग रही है? चैट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं, अगर अच्छी लग रही है तो यस लिख सकते हैं या थम्स अप कर सकते हैं।
तब सब कर सकते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बोलता हूं, हम कितने भी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं, लेकिन हम लाइफ लॉन्ग लर्नर है। लर्निंग कभी हमको भूलना नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप अर्निंग। जिस दिन लर्न करना छूट जाएगा उस दिन अर्न करना छूट जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जीसीपी को, ग्लोबल चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स के सारे अथॉरिटीज को, कि वो उन्होंने ये बहुत अच्छा एक सेशन शुरू किया है, वेबिनार शुरू किया है। कल मुकेश जी बता रहे थे शार्पन योर स्किल, ये आपकी स्किल को शार्पन करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है। नहीं तो हम डे टू डे लाइफ में बस चलते जा रहा है, जीवन चलते जा रहा है। हम स्किल को शार्प ही नहीं करेंगे, अपनी एक्स को शार्प नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकती है। तो एक बहुत अच्छी आप लोगों ने शुरुआत करी है अपनी स्किल को शार्पन करने के लिए। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक दिखता है आप लोगों के अंदर कि आपके अंदर एक सीखने की एक, जिसे कहते हैं क्वेस्ट नजर आती है, क्वेस्ट आती है, हाँ क्या आप सीखना चाहते हैं। देखिए आपने गीता के बारे में सुना होगा, लॉर्ड कृष्णा हैज गिवन दिस ब्यूटीफुल नॉलेज ऑफ गीता टू अर्जुन ओनली 5000 years ago। 5000 साल पहले ये नॉलेज अर्जुन को दिया था। क्यों दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, क्यों दिया, बाकी पांडवों को क्यों नहीं दिया? चलिए आप बताइए चैट बॉक्स में मुझे, ये नॉलेज जो है ये बाकी पांडवों को क्यों नहीं दिया गया? युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया, भीम को क्यों नहीं दिया, नकुल को क्यों नहीं दिया, सहदेव को क्यों नहीं दिया? ये नॉलेज अर्जुन को भगवान ने क्यों दिया? क्या आप मुझे इस चैट बॉक्स में बता सकते हैं लिख के क्यों दिया? एनीबडी who can support me, help me in writing chat box? अर्जुना को क्यों नॉलेज दिया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया गया? यस, क्यों दिया गया? देखिए उसका बहुत बहुत सारे आंसर आते, लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, लेकिन अर्जुना को नॉलेज इसलिए दिया गया कि अर्जुना वाज हैविंग दैट क्वेस्ट फॉर नॉलेज, थ्रस्ट फॉर नॉलेज। उसको वो नॉलेज की जिज्ञासा थी, वो प्यास थी कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज चाहिए, वो प्यास थी, इसलिए वो नॉलेज उसको दिया गया। तो मुझे खुशी है कि आप जीसीपी के जितने सारे मेंबर्स हैं उनको ये क्वेस्ट है नॉलेज की। अभी प्रवीण जी बड़े जोश के साथ बता रहे थे, पटना से उन्होंने ज्वाइन किया कि मैं मतलब ये सेशन ज्वाइन, कल मेरा छूट गया था, मैंने सोचा आज मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो सुन के मुझे खुशी हुई कि हाँ आपके अंदर वो नॉलेज को पाने की एक जिज्ञासा है, वो क्वेस्ट है, वो भूख है, वो प्यास है। और ये प्यास जब तक आपके मन में नॉलेज को पाने की है तब तक आपकी तरक्की 100% गारंटीड है। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन हम सीखना छोड़ देंगे उस दिन कमाना भी छूट जाएगा। Sometimes we don't know that we don't know। ध्यान से सुनिएगा, sometimes we don't know that we don't know। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमें पता नहीं है। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। नो, सब कुछ तो सबको कभी पता हो ही नहीं सकता। Our minds are like parachutes। ध्यान से सुनिएगा, our minds are like parachutes, they work only when they are open। हमारे मस्तिष्क पैराशूट के जैसे हैं, वो तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। हमारा माइंड, कई बार मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन में, मैं यहाँ पे मुंबई में आया एज ए जनरल मैनेजर बन के कोरस इंडिया में, 35 ईयर्स की मेरी एज थी। मेरा ब्रांच मैनेजर से डायरेक्ट प्रमोशन हो गया जनरल मैनेजर। सो पीपल हियर हैविंग एज ऑफ 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स के लोग थे जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हो गए। एक तो उसमें ऐसा था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, वो मेरा सबऑर्डिनेट हो गया। अभी दे हैड ए टेंडेंसी इन देयर माइंड, अरे ये कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा। ओह व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, कांट यू इवन रियलाइज टुडे, ये जो कल का छोकरा था आज तुम्हारा बॉस बन गया एंड स्टिल यू आर ग्रजिंग। अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कल का छोकरा हमारा बॉस कैसे बन गया। कांट यू डू सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? कब सुधरेंगे? सो अवर माइंड्स ऑलवेज ए ओपन, अरे मेरे को सब आता है, आई नो एवरीथिंग। जैसे लैपटॉप में अगर 256 GB की कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी फुल हो गई तो कोई नई इंफॉर्मेशन जा नहीं सकती। वैसे अगर हमने सोच लिया कि हमको सब कुछ आता है तो हमारे माइंड में कुछ नई इंफॉर्मेशन जा नहीं सकती। अवर माइंड इज फुल, वी हैव टू कीप अवर माइंड ओपन। सो माइंड्स आर लाइक पैराशूट, दे वर्क ओनली व्हेन दे आर ओपन। अगर हम ओपन माइंड से सब रखते हैं, ओपन माइंड से हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में हमारी तरक्की अवश्यम भावी है, कोई हमारी तरक्की को रोक नहीं सकता।
देखिए कई बार आपने, एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके जो एम्प्लॉइज के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतना सब कुछ है। आपने वो टूथपेस्ट का एग्जांपल सुना होगा, एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया कि हाफ ऑफ ए ब्रश टूथपेस्ट इज एनफ फॉर टीथिंग, आधा आधा ब्रश में पेस्ट लगाओगे उतना काफी है ब्रशिंग के लिए। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल रहा, लेकिन सेल आधी हो गई कंपनी की, सब परेशान हो गए क्या करें। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, बड़े बड़े आइडियाज आए, लेकिन एक आइडिया लास्ट बेंच पे एक पुअर गाय बैठा था, एक पुअर सेल्समैन, उसने आइडिया दिया, सर कांट वी इंक्रीज द सर्कमफरेंसेस ऑफ द ट्यूब लिटिल बिट which will not be noticed by the customer and they will consume more paste। क्या उसने सजेशन दिया कि ट्यूब का जो गोलाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो लोग आधा लगाएंगे लेकिन ज्यादा पेस्ट कंज्यूम होगा, और इट वर्कड वेल, सेल वापस लाइन पे आ गई। एक शू बनाने वाली कंपनी थी, उसने एक एम्प्लॉय को भेजा एक आइलैंड पे जहां पे लोग शू नहीं पहनते थे। वो एक ऑफिसर गया, जाके आया, बोला कोई स्कोप नहीं सर, वहां पे शू बेचने का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई शू पहनता ही नहीं है, शू पहना जानते ही नहीं है। ये एक नजरिया था। दूसरे ऑफिसर को भेजा, वो लौट के आया, वो आपके जैसे टीम मेंबर था, कोई बड़ा जोशीला आदमी था, बड़ा एंथुसियास्टिक, बड़ा मोटिवेटेड था। वो गया, लौट के आया, सर आई नीड 5 कंटेनर्स ऑफ शूज। क्यों भाई? सर आई नीड 5 कंटेनर्स ऑफ शूज, आई वांट टू सेंड देम टू दिस आइलैंड। वहां पे कोई शू पहनता ही नहीं है, हमें सिर्फ उनको शू पहनना सिखाना है। जैसे वो शू पहनना सीख जाएंगे, वहां पे हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है। एक सिचुएशन, दो लोग, अलग अलग उनका एनालिसिस। तो हमें पता नहीं है, कई बार हमारा एनालिसिस सही होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो जब हम लोगों को साथ लेके काम करते हैं, उनका सुनते हैं, तो फिर कई क्रिएटिव और वंडरफुल आइडियाज आने लग जाते हैं। यस सर, नो? आप मेरे से एग्री है? तो ये साइड हो गया। अब दूसरा साइड में बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बोला कि भाई आप एम्प्लॉय का ध्यान रखो, आपकी लीडरशिप को स्ट्रांग करो, उनको प्यार करो, उनको इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनकी सुनो, ये करो वो करो, वो अच्छा फील करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको एम्प्लॉय साइड से भी बात करता हूँ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जनरली, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। सुपरस्टार्स नंबर 1, नंबर 2 डूअर्स, नंबर 3 टॉकर्स, नंबर 4 ट्रबल मेकर्स। ये 4 तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सुपरस्टार वो होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, गो गेटर्स। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत। वो अपना काम जानते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द क्रॉप, देयर पर्सनैलिटी इज इलेक्ट्रीफाइंग, दे आर डायनामिक पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन है, दे नो देयर वर्क, दे नो हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रो। सो सुपरस्टार कैटेगरी में वो लोग होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है डूअर्स। वो लोग अपना काम करते हैं जितना उनको बताया गया है, जितना बोलो उतना करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, इतना करना है, इतना करना है, ठीक है, 20 कॉल्स करनी, 20 कॉल्स कर दिया, इतना बिजनेस करना है, उतना बिजनेस कर लिया। वो डूअर्स होते हैं, उनका ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को ठीक से अंजाम देते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है टॉकर्स। वो बात ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, इधर उधर पॉपिंग करते हैं, इसने ये बोला, उसने वो बोला, बॉस का बॉस से ये चल रहा है, उसका इससे ये चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है। दे कीप ऑन पॉपिंग हियर एंड देयर, पैपिंग हियर एंड देयर। वो बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है ट्रबल मेकर्स। वो काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रबल पैदा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पीछे धकेलने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बेटर नॉट टू हैव पीपल rather than having a wrong people in the organization। एक रॉन्ग पर्सन होने से तो पर्सन नहीं होना ज्यादा अच्छा है। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। A bad apple in the barrel has to be removed in order to save the lives of other apples। अगर एप्पल की टोकरी में एक एप्पल सड़ गया है तो उस एप्पल को निकाल देना समझदारी है, बेहतरी है। उसको निकालने से बाकी एप्पल की भी जिंदगी आप बचा सकते हो। मेकिंग सेंस? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमको इमोशनली ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाना है। हमारा दिल और दिमाग दो चीज होती है। घर में जितने भी डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, जितने भी घर के आप डिसीजन लेते हैं वो दिल से लीजिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजन लेने हैं वो दिमाग से लीजिए। वहां पे इमोशनली, अरे बेचारा है, कहां जाएगा, क्या करेगा, ही हैज टू वर्क, ही हैज टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, आपने एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मैं अपने बंदों को एक ही बात सिखाता हूँ, जितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने बोला देखो तुम्हारी अगर कॉर्पोरेट लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से चलेगी, ध्यान रखना। वो 3 चीजें क्या है? परफॉर्मेंस, 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 बस। परफॉर्मेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइकोफेंसी, फ्लेटरी ये ज्यादा दिन नहीं चलती है, थोड़े दिन चल सकती है, लंबे समय के लिए कभी नहीं चलती है। तो अगर आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपकी लाइफ सेफ रहेगी। मैं अपने लोगों को जब ट्रेनिंग देता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के लिए, कई यंग कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, कई यंग होते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, मैं उनको 2 रूल बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के 2 रूल है। मैंने कहा पहला, और दोनों रूल मैं उनको फिल्मी डायलॉग से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि फिल्मी डायलॉग से जब आप कनेक्ट करते हो ना तो बच्चों को जल्दी याद होता है। तो मैं बोलता हूँ शोले फिल्म में एक डायलॉग याद करो, जिसमें बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। मैंने कहा तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ में नौकरी तब तक चलेगी जब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस चलेगी। तेरे पांव रुके, तेरे यार की सांस गई, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस रुकी, तुम्हारी नौकरी गई। ये मैंने कहा पहला रूल है कॉर्पोरेट में, परफॉर्मेंस के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उनको समझाता हूं। और दूसरा रूल मैं बताता हूं, वो भी पिक्चर के गाने से कनेक्ट करता हूं, कि ये जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं उनको क्या बोलता हूँ, ये जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तुम पास्ट ग्लोरी में नहीं जी सकते। अरे मैंने 15 साल पहले ऐसा किया था, वैसा किया था, वो किया था। अरे तुमने अच्छा से किया था तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ था और तुम आज यहाँ पहुंचे हो। यू कैन नॉट लिव इन पास्ट ग्लोरी, यू हैव टू क्रिएट हिस्ट्री एवरी डे। उनको एक ही बात समझाता हूँ, आइदर यू कंटिन्यू टू क्रिएट हिस्ट्री, आइदर यू कंटिन्यू टू क्रिएट हिस्ट्री और यू विल बिकम हिस्ट्री। आपको कॉर्पोरेट में हर दिन एक नया इतिहास बनाना है। अगर आप नया इतिहास नहीं बना सकते हो तो आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाओगे। ये 2 रूल मैंने बताया, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो और इतिहास बनाओ। तो दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सब चीजों में, और दूसरा उनके अंदर एक भाव, एक बिलोंगिंगनेस पैदा करो कि यस ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं। वो एक भाव उनके मन में पैदा होते सी फिर हर चीज का फायदा उनका, नुकसान उनका। देखो मैं बताता हूं कि एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें 5000 एम्प्लॉइज थे। कॉस्ट सेविंग के ऊपर बड़े बड़े ड्राइव चलते, कॉस्ट कटिंग ड्राइव चलते, ये होता है। मैं बोलता हूँ क्या कॉस्ट कटिंग इज नॉट एन इंपेरेटिव कि आप उसको ड्राइव चलाओ। कॉस्ट कटिंग इज 24/7 आपको करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ अगर आप एक एम्प्लॉय 10 रुपया पर दिन पर डे भी सेव करता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो 5000 एम्प्लॉय 50,000 रुपए सेविंग हो सकता है। और आप कैलकुलेट कर लो साल में कितना सेविंग होगा, लाखों करोड़ों में सेविंग हो सकता है। और उसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है, अगर 10 रुपया ज्यादा खर्चा करो तो ऑर्गेनाइजेशन कितने ऊपर चली जाती है। वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमको वी शुड इम्बाइब दिस क्वालिटीज इन अवर पीपल कि भाई देखो ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, 1-1 रुपया बचाओ। जरूरी नहीं तो फोटोकॉपी मत कराओ, जरूरी नहीं तो प्रिंट आउट मत निकालो, जरूरी नहीं तो नया स्टेशनरी मत खरीदो, डिजिटल पे काम करो, पेपरलेस ऑफिस पे काम करो। फाइलिंग और फाइलिंग में उनको फर्क सिखाओ। फाइलिंग मतलब पेपर का ढेर लगाना, फाइलिंग मतलब पेपर को प्रॉपर अरेंज करना। उनको सिखाओ कि ड्रावर प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, आपका इनबॉक्स प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, मोबाइल आपका प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, टाइम पे आपको ऑफिस आना चाहिए, सब लोगों को साथ लेके ऑफिस चलना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऑर्गेनाइजेशन, विनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बनती है। और कुछ देखना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब जगह हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ इज ऑसिलेटिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। आइदर वी आर ब्रूडिंग ओवर द पास्ट और वी आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, योग क्षेम वहाम्यहम्, बोले तुम मेरे पे अर्जुन, तुम मेरा ध्यान करो, तुम्हारे योग और क्षेम दोनों की मैं रक्षा करूंगा। योग मीन्स हमारी लाइफ में देखो 2 ही वरी है। क्या वरी है? मेंटेन व्हाट वी हैव एंड एक्वायर व्हाट वी डोंट हैव। जो है उसकी हमें रक्षा करनी है और जो नहीं है उसको पाना है। ये 2 ही हमारे लाइफ के वरीज है। तो भगवान बोलते तुम्हारे योग मतलब मेंटेन व्हाट यू हैव एंड शेम मींस नहीं, योग मींस एक्वायर व्हाट यू डोंट हैव एंड शेम मींस मेंटेन व्हाट यू हैव। बोले इन दोनों की मैं रक्षा करूंगा, तुम मेरे को अपना समर्पण करो। हमारी लाइफ इसी में झूलती रहती है। और इन द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेटिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर वी डिस्ट्रॉय आवर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट मोमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट फ्रॉम द गॉड।
द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द गॉड. प्रेजेंट मीन्स क्या? प्रेजेंट मीन्स टुडे एंड प्रेजेंट के दो मीनिंग है. प्रेजेंट मतलब टुडे और प्रेजेंट मीन्स गॉड. सॉरी, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. दो मीनिंग है. तो आज भी को भी प्रेजेंट बोलते हैं और गिफ्ट को भी प्रेजेंट बोलते हैं. सो द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द गॉड ऑन दिस प्लैनेट टू अस इज अवर प्रेजेंट मोमेंट. लेकिन क्या है, मैं 3-4 लाइन सुनाता हूँ, बहुत सुंदर सी लाइन है कि बीते कल की याद कर कसमसाता रहता है. हम लोग पास्ट में रह के कसमसाते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, व्हाई इट हैज हैपेंड विद, व्हाई इट हैपेंड विद. माय डियर फ्रेंड्स, जो तुम्हारे साथ हुआ, यू आर रेस्पॉन्सिबल. व्हाट यू आर टुडे इज द आउटकम ऑफ योर पास्ट. व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुमारो विल बी डिसाइडेड बाय योर टुडे. आज आप जो कुछ भी हो, अपने पास्ट कर्मों का परिणाम हो, और जो आपका कल होगा वो आपका आज प्रेजेंट डिसाइड करेगा. सो बीते कल की याद कर कसमसाता रहता है, आने वाला कल कैसा होगा भयभीत रहता है. जो खुशी इस पल में है, इससे क्यों अनजान है तू. दुख में खुशी, खुशी में आनंद लेकर देख, कहां भटक रहा है, कौन है तू. अपने आप से पूछ, कुछ करने और जानने से पहले जान ले अपना वजूद. जान तो लो कि तुम क्या हो. हु आर यू, वेयर आर यू, कैसे आप यहाँ आए हो, किस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, क्यों इस प्लैनेट पे आए हो. थोड़ा कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करो. हम बोलते हैं अरे मैं तो बोर हो रहा हूँ घर में. अरे इफ यू कैन नॉट एंजॉय योर ओन कंपनी, हाउ अदर्स विल एंजॉय योर कंपनी. आपको अगर खुद की कंपनी पसंद नहीं है तो दुनिया में कौन आपकी कंपनी पसंद करेगा. दोस्तों मुझे बताओ, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों. इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, if you continue to do what you have been doing in the past, you will continue to get what you were getting in the past. अगर आप वही काम करते रहोगे जो कर रहे थे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिल रहा था. ज्यादा पाना है, ज्यादा करना पड़ेगा, कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा. रोने से कुछ फायदा नहीं होगा. अरे कोविड चल रहा है, क्या करूं. नथिंग डूइंग. करने को बहुत कुछ है. ड्यूरिंग क्राइसिस सम पीपल फेल डाउन एंड सम पीपल break records. Crisis can be a stumbling block or it can be a stepping stone. है ना. ये एक परीक्षा की घड़ी है आपकी. कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इसी घड़ी में रिकॉर्ड बनाते हैं. जब भी ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैंने सेमिनार बहुत किए थे, 1100-1200 मैंने सेमिनार किए. ये वेबिनार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. मार्च की मैं बात कर रहा हूं. मैंने सर्च किया वेबिनार होता क्या है. फिर पहली बार मैंने जूम डाउनलोड किया. मेरा सेकंड वेबिनार हैक हो गया. 67 पार्टिसिपेंट थे और किसी ने हैक कर दिया वेबिनार. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा, सारे सिक्योरिटी फीचर को स्टडी किया. उसके बाद मेरे बैक टू बैक फुल एंड पावरफुल सेमिनार्स हुए, वेबिनार्स हुए. तो करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और रोने के लिए ठीक है, बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है. किसको पढ़िए. बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, माता जी जाते जय माता दी जय माता दी, लोग आगे बढ़ते जाते हैं. अगर आप थक के रुक जाओगे, बैठ जाओगे, तो बैठे रहो, किसको पढ़िए. वी हैव टू टेक द ऑनर्स ऑफ अवर लाइफ. हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है. हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है तो जिम्मेदारी खुद लेनी है. अकेले आए थे, अकेले जाना है. जो कुछ करना है हमें करना है, बस ये डिसाइड कर लो. हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ करना है. हमें कल मुकेश जी ने बहुत अच्छा बताया, सुबह जल्दी उठिए, रात को 9 बजे 7 बजे के पहले खाना खाइए, 9 बजे सोने चले जाइए और सुबह 3-4 बजे उठिए. बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली. ये जिम्मेदारी हमको लेनी है. उन्होंने 5 बॉल्स बताए. ये सब जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना है. तो मैं आपको 1-2 स्लाइड दिखाता हूं, उसके बाद ये टॉपिक को एंड करता हूं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करता हूं, क्योंकि 2 टॉपिक मुझे कवर करने का बोला गया है. तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे. देखिए, आप सब लोग चार्टेड अकाउंटेंट है. ये बीसीजी मैट्रिक्स तो आपने देखा ही होगा, सबने सुना ही होगा, इसके बारे में जानते ही होंगे, जो कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं हम कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को. तो इसको यूज करते हैं कि जिस कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, वो कैश काउ उसकी कैटेगरी में आती है. जिसका मार्केट शेयर कम है और ग्रोथ रेट भी कम है, तो वो लोग डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं. और जिनका मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आते हैं. और जिनका मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, वो उसको हम स्टार की कैटेगरी में डालते हैं. तो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस जब किया जाता है तो इस बीसीजी मैट्रिक्स को हम लोग यूज करते हैं. आप मेरे ख्याल से आप सभी लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे.
मैं अब आपको इस बीसीजी मैट्रिक्स से मैंने एक एम्प्लॉय मैट्रिक्स बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनकी दो चीजें होती है, या तो उनके अंदर पोटेंशियल लो होता है या तो हाई होता है, और उनकी परफॉर्मेंस लो होती है या तो हाई होती है। तो अभी देखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। जिन लोगों की पोटेंशियल हाई है लेकिन परफॉर्मेंस लो है, उनको वर्क हॉर्सेस की कैटेगरी में डालिए। मतलब क्या करना है आपको, थोड़ा चाबुक लगाना है ना, बंदूक लगानी है। थोड़ा चाबुक लगाओगे तो उनकी पोटेंशियल तो हाई है, परफॉर्मेंस लो है, वो दौड़ के काम करेंगे, चाबुक लगाते से काम करने लग जाएंगे, वर्क हॉर्सेस। दूसरी कैटेगरी है, वो है जिनके पोटेंशियल तो कम है लेकिन परफॉर्मेंस हाई है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम चिल्ड्रन है भाई, इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस हाई करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन है। तो थोड़ा उनके साथ बी अवेयर ऑफ, जो ना जैसे कहते हैं ना फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, उनको थोड़ा ध्यान से आप हैंडल कीजिए। तीसरी कैटेगरी है जिनकी परफॉर्मेंस भी लो है और पोटेंशियल भी लो है, उनको डेड वुड की कैटेगरी में रखेंगे। मैंने आपको बताया ना, बैड एप्पल इन द बैरल शुड बी रिमूव्ड, बेटर टू गेट रिड ऑफ सच पीपल, दे आर व्हाइट एलिफेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लाइबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग हमारी असेट नहीं है, वो हमारी लाइबिलिटी है। और जो चौथी कैटेगरी होती है, जो मैं आपको सुपरस्टार बता रहा था, वो स्टार कैटेगरी होती है। वो एम्प्लॉय होते हैं जिनका पोटेंशियल भी हाई होता है और जिनकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है। जैसे कल मुकेश जी बता रहे थे ना 20-80 का फॉर्मूला, तो ये 20% एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी वजह से 80% ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। 20% एम्प्लॉय स्टार एम्प्लॉय होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं 80% ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे जा रहा हूं। 4 तरह के लोग होते हैं। उसमें एक होती है कैटेगरी जो खुद को तो डेवलप करते हैं लेकिन दूसरों को हार्म करते हैं। तो खुद को डेवलप करना और दूसरों को हार्म करना, इसको मैं बोलूंगा पैरासाइट्स। बड़ा डेंजरस है कि दूसरों का नुकसान करा के जो लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है, पैरासाइट्स है। दूसरी कैटेगरी होती है जो खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, वो तो टेररिस्ट है, आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट है ना। उनको तो बस यही है कि ज्ञान देना है कि भाई तुम इस पद से हटो। तीसरी कैटेगरी होती है जो दूसरों को डेवलप करते हैं लेकिन खुद का नुकसान करते हैं, वो मार्टर है, वो शहीद हो जाते हैं दूसरों की। देखिए अभी हमारे सीमा पे 20 जवान शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? उन्होंने खुद की जिंदगी को त्याग कर दिया। क्यों जिंदगी त्याग कर दी? ताकि हम यहाँ पे चैन की सांस ले सके, हम सुरक्षित रह सके। तो ऐसे लोग मार्टर की कैटेगरी में आते हैं, शहीद की कैटेगरी में आते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है आइडियल, मतलब जो खुद को भी डेवलप करते हैं और दूसरों को भी डेवलप करते हैं। ये जीसीपी जो प्लेटफॉर्म में देख रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों में देखा, मैं स्पीकर भी आप हैं और बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, खुद को भी डेवलप करते हैं और सबको डेवलप कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं इस प्लेटफॉर्म को। फैंटास्टिक काम आप लोग कर रहे हैं, डेवलपिंग सेल्फ एंड डेवलपिंग अदर्स। सो यू आर एट आइडियल लेवल। पसंद आई आपको मेरी बात? अच्छा, ये अगर आपको कुछ भी मेरे को कैरी करनी है तो यू कैन राइट मी ऑन माई ईमेल आईडी garg.dranilkumar@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, garg.dranilkumar@gmail.com। एंड आप, आई एम एट योर सर्विस 24/7। मैं तो दूसरों के लिए अपनी जीवन को लगाया हुआ है, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। +91 इंडिया का कोड है, 9322599875, 9322599875। और मैं एक छोटी सी स्लाइड आपको और दिखा देता हूं। एक छोटी सी स्लाइड, जो टॉपिक जो है, मैं कौन से टॉपिक में, एक मिनट, यस,
देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, वेबिनार्स कर चुका हूँ, सेमिनार कर चुका हूँ। तो आपको कभी भी कहीं भी कोई लिंक है, रेफरेंस है, आप बता सकते हैं। ये 27 टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वेबिनार ऑलरेडी बहुत सारे कर चुका हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, इंडिया में और पूरे विश्व में मैं ये वेबिनार कर चुका हूँ, सेमिनार भी कर चुका हूँ। तो ये 27 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेरा एक्सपर्टाइज है। लेकिन इसके अलावा भी कोई टॉपिक है तो मैं आपके लिए वो प्लान कर सकता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा कस्टमाइज कर सकता हूँ कोई प्रोग्राम को। जैसा आज ऋषि जी ने बोला कि आप 2 टॉपिक कवर कीजिए, नॉर्मली एक टॉपिक में 90 मिनट्स में कवर करता हूँ, लेकिन आपके लिए 2 टॉपिक में 90 मिनट्स में कवर कर रहा हूँ। तो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक। नाउ माय सेकेंड टॉपिक इज प्लानिंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। देखिए प्रॉपर प्लानिंग तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लानिंग मीन्स व्हाट? पुटिंग फ्यूचर इनटू प्रेजेंट। फ्यूचर को प्रेजेंट में रखना प्लानिंग है। जो 5 साल बाद आज हम फैक्ट्री लगाते हैं, 2 साल बाद प्रोडक्शन आएगा, 3 साल बाद हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और अभी उसकी प्लान कर रहे हैं। सो प्लानिंग मीन्स पुटिंग फ्यूचर इनटू प्रेजेंट। और एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आप जानते होंगे, PPPP, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आपकी पुअर परफॉर्मेंस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, फेलियर्स को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हर काम को प्लानिंग से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज वी आर ऑल लीडर्स, वी नीड टू बी प्रिडिक्टेबल इन दिस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड। ये पूरा विश्व अनप्रिडिक्टेबल है, पूरी दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में हमें प्रिडिक्टेबल होना है। लोग हमारे बारे में जान सके, हमारी ब्रांड इमेज बननी चाहिए, यूएसपी होना चाहिए। हाँ, जब आपका नाम आए तो लोगों का हाँ ये आदमी है जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार होता है, ऐसा आपका यूएसपी होना चाहिए, ऐसा आपका ब्रांड होना चाहिए। तो आप एक सक्सेसफुल लीडर है, हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल, हु इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट पीपल, गाइड पीपल। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 25 एम्प्लॉय थे उस ऑर्गेनाइजेशन में। 20 पीपल वर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, 4 वर बोर्ड मेंबर, चेयरमैन, ये वो सब मिला के, एंड 1 सेल्स पर्सन वाज देयर, पुअर गाय। कैन दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो? वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है क्या? जहां पे एक आदमी फील्ड में काम करने वाला हो, 20 लोग थिंकिंग करने वाले और प्लानिंग करने वाले हो, 4 लोग बड़े बॉसेस हो और काम करने वाला एक ही लोग हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी काम नहीं कर सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग से ज्यादा एक्शन जरूरी है। एक्शन इज द की इन अवर लाइफ। प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग करके छोड़ मत दो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो। और एक्शन में कन्वर्ट करने का पहली चीज तो देखिए, हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारा गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? आर वी क्लियर ऑन अवर गोल्स? और एवरी एम्प्लॉय इज क्लियर ऑन अवर गोल्स? देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यू वांट टू क्लाइम ए माउंटेन, सो इफ यू वांट टू क्लाइम ए माउंटेन, आपको अगर पहाड़ चढ़ना है तो क्या क्या चीज चाहिए? आप बताइए, कैन यू राइट ऑन चैट बॉक्स कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए? रोप चाहिए, करेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। We need to climb the mountain, we need lot many things. Yes or no? But remember, can we climb a mountain without a mountain? No. So to climb a mountain, we need mountain first. सबसे पहले माउंटेन होना चाहिए, तभी हम माउंटेन पे चढ़ सकते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डिजायर चाहिए, रोप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मुकेश जी लिख रहे हैं, लेकिन माउंटेन नहीं है तो ट्रेनिंग क्या काम की, रोप क्या काम की, डिजायर क्या काम की? तो माउंटेन ही जरूरी है। कहने का मतलब हमारा गोल हमारे सामने होना चाहिए। आप YouTube पे सर्च करेंगे, आप जानते होंगे, स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, वो सब जानते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप गोल डिसाइड करते हैं, देखिए सारी चीजें बदल जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मुंबई से गोवा जाना है 25 जून को। जैसे ही आपने डिसाइड किया,
कि मुझे मुंबई से गोवा 25 जून को जाना है, वैसे देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया। आप फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे, ट्रेन की टिकट बुक करेंगे, टैक्सी बुक करेंगे, होटल बुक करेंगे, एक्शन शुरू हो गया। जब तक आपने डिसाइड नहीं किया था आप आराम से कंफर्ट मोड में थे, लेकिन जैसे आपने डिसाइड किया मुझे गोवा जाना है, एक्शन लाइफ में शुरू हो गया। ये सर नो। वैसे ही जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं है, एक्शन क्या लोगे? हमें पता ही नहीं हमें जाना क्या है, कौन सा पथ लेंगे, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सी फ्लाइट पकड़ेंगे, कैसे करेंगे। ये सब तभी हो सकता है जब हमारा गोल सामने हो। गोल डिसाइड होते से ही एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन लेने के लिए पहले गोल होना चाहिए। गोल हमारा माउंटेन है, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। सो प्लानिंग करो लेकिन एक्शन। देखिए विजन की बात करते हैं सब लोग, विजन होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। मैं बोलता हूं विजन इज नॉट समथिंग विच इज रिटन ऑन द वॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द फ्रंट गेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या उसका एक तस्वीर में डला के उसको वहां पे लगा दिया है। वो विजन नहीं है। विजन वो है जो हर एम्प्लॉय के डीएनए में है, टॉप टू बॉटम, ऑनर से लेके चपरासी तक, लिफ्टमैन तक, सबके डीएनए में जो चीज है वही विजन है मेरे हिसाब से। क्वालिटी पॉलिसी वो नहीं है जो हमने बोर्ड पे लिख दी। क्वालिटी पॉलिसी वो है जो हर वर्कर के डीएनए में है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रोडक्ट को ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे अगर वो खरा नहीं उतर रहा है तो मैं उसको पास नहीं करूंगा। विजन वो होता है। विजन विदाउट एक्शन इज इल्यूजन। विजन विदाउट एक्शन इज इल्यूजन एंड विजन विथ एक्शन इज कन्विक्शन। हमारा विजन तो है, विजनरी तो हमें, लेकिन एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं तो इल्यूजन है, धोखा है। हम खुद से भी धोखा दे रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी धोखा दे रहे हैं और अपने स्टाफ के साथ भी हम धोखा कर रहे हैं। एक्शन के बगैर विजन इल्यूजन है और एक्शन के साथ विजन कन्विक्शन है। यस, ये विजन है मेरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन में लाना है अगले 5 साल में। ये विजन है। टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्शन के साथ होना चाहिए। लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा ड्रीमर है, बहुत अच्छा ड्रीम करता है, बहुत अच्छे इसके सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं। ड्रीमर होने से काम नहीं चलेगा। ड्रीमर एंड डूअर दोनों होना पड़ेगा। सपने देखो, धीरू भाई अंबानी ने बोला था ये बात, सपने देखो, तारों के नीचे चंद्रमा की कल्पना करो, लेकिन अपने पांव को जमीन पे टिका के रखो और उसके लिए प्रयास करो, सार्थक प्रयास करो। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तुम्हारा कोई सपना पूरा हो नहीं सकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना हमें, घर बैठे बैठे सपने नहीं देखना है। जितने बड़े सपने देखना है देखो। अरे जब चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है दोस्तों, तो हम क्या नहीं बन सकते, हम क्या नहीं कर सकते। आप देखिए जितने भी आप लाइफ स्टोरीज पढ़िए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए दुनिया में, उनकी अगर आप जिंदगी देखेंगे वो सब कुछ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेरी वर्क में, वो बड़े बेड स्पेलर थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को डिस्कवर किया, वो मैथमेटिक्स में पुअर थे। थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया, वो बॉटम ऑफ द क्लास थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ टाइम को इन्वेंट किया, है ना, वो बड़े मेंटली स्लो थे। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे। अमिताभ बच्चन आप जानते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी आवाज पसंद नहीं थी लोगों को। तो जो भी लोग सफल हुए हैं वो शुरुआत में फेलियर से ही सफल हुए। देखिए थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को इन्वेंट किया। ही फेल्ड 1000 टाइम्स इन हिज लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब प्रोड्यूस करते करते वो 1000 बार फेल हुआ। और जब उसका इंटरव्यू लिया गया, जब वो सक्सेसफुल हुआ था, तब उसका इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया कि आप कितनी बार फेल हुए। उसने बोला नहीं, मैं तो एक बार भी फेल नहीं हुआ। किसने कहा मैं फेल हुआ? आई ओनली लर्न that these are the 1000 ways by which a light bulb cannot be invented. बोले मैंने तो सिर्फ ये सीखा है कि 1000 तरीकों से तो मैं लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं कर सकता, मुझे दूसरा तरीका खोजना होगा। जिस दिन लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ था, उस रात को थॉमस एडिसन की वाइफ बहुत गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो बोला थॉमस तुम ये इतने सालों से कर रहे हो, neither you are sleeping nor you are allowing me to sleep. ना तुम खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। ये तुमसे कुछ इन्वेंट होने वाला नहीं है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
such a derogatory remark, such a depressive remark from his own wife, but he was not affected with those remarks, and that was the night where light bulb was invented. उसी रात वो लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ। दोस्तों, इस प्लैनेट पे ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे who are known for throwing cold water on your enthusiasm. आपकी enthusiasm पे ठंडा पानी डालने के लिए लोग बाल्टी लेके तैयार बैठे हैं। हमें उनसे बच के रहना है। जब भी आप जीवन में कुछ नया प्रयास करोगे, कुछ नया सोच करोगे, 4 चीजें होंगी, ध्यान रखना। पहली चीज, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ये नहीं चलेगा रे, फालतू है रे। लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे। दूसरी चीज, बैक बाइटिंग करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे। तीसरी चीज, आपके साथ झगड़ा भी करेंगे, फाइट भी करेंगे। तो क्या करेंगे? वो आपकी निंदा करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे और आपके साथ झगड़ा भी करेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से इफेक्टेड नहीं होते हो तो आपके जीवन में एक चौथी घटना होगी, और वो घटना क्या होगी कि आप सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल। दोस्तों, ड्रीम्स आर नॉट दोज which we see when we are sleeping. Dreams are not those which we see when we are sleeping. Dreams are those which don't allow us to sleep. दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देखते। सपना देखिए, लेकिन सपनों को सार्थक करने के लिए प्रयास कीजिए। एक्शन, जीवन में एक ही मंत्र है, एक्शन। 1000 माइल की जर्नी भी पहले स्टेप से शुरू होता है। यू टू टेक फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू ट्रैवल 1000 माइल्स। पहला कदम बढ़ाओगे तभी तो 1000 माइल जा पाओगे। जब तक पहला कदम नहीं लोगे 1000 माइल आप नहीं जा सकते। जीवन में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है, अपॉर्चुनिटी जब हमारा दरवाजा खटखटाती है हम सोते रहते हैं, सोचते हैं कि नॉइज है। व्हेन अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग अवर डोर एंड वी आर स्लीपिंग थिंकिंग इट इज अ नॉइज, अपॉर्चुनिटी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट डोर। जब अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाजा खटखटाती है और हम सोचते हैं कि ये आवाज हो रही है, अपॉर्चुनिटी दूसरे डोर पे चली जाती है। एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बेटर आ सकती है, लेकिन सेम अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है। आपके इतने वेबिनार्स हो रहे हैं, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। जो लोग नहीं फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। एक बड़ा एक स्टोरी है। एक गाँव में एक लड़का था, वो बड़ा भगवान का भक्त था, डिवोटी था। तो वो, उनके गांव में बाढ़ आ गई, पानी का लेवल कंधे तक आ गया। तो एक बोट आई उसको बचाने के लिए कि भाई आ जाओ तुमको बचाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर पानी का लेवल यहाँ तक कान तक आ गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, रोप आई, रस्सी आई, उसने बोला चलो भाई पकड़ो, हम तुमको, नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर पानी का लेवल सर तक आ गया, उसको फिर दूसरा एक हेलीकॉप्टर आया, उसने बोला भाई आ जाओ, रस्सी पकड़ो, आ जाओ, हम तुमको बचाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और क्या हुआ? फाइनली सीधा भगवान के पास, पानी में डूब गया, सीधा भगवान के पास गया कंप्लेंट मोड में, ये भगवान मैं आपका इतना बड़ा भक्त, आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे डुबा दिया, आपने मुझे मार दिया। भगवान ने बोला भाई, who sent that boat, who sent that first helicopter, who sent that second helicopter? बोले किसने वो बोट भेजी थी, किसने वो पहला हेलीकॉप्टर भेजा था, किसने दूसरा हेलीकॉप्टर? अरे सब मैंने भेजा। 3 बार मैंने तेरी जिंदगी को बचाने की कोशिश करी, लेकिन तू स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं, हम दरवाजे ही नहीं खोलते, सोते रहते हैं और बाद में ग्रज करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नो, नॉनसेंस, तेरे साथ कुछ नहीं होता है। इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग इन द पास्ट। अगर वही करते रहोगे जो कर रहे थे, तो वही मिलता रहेगा जो मिल रहा था। जब अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा ओपन करो और अपॉर्चुनिटी को गले लगाओ। वेलकम अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी चली जाती है और हम रोते रह जाते हैं। गले लगाओ। और देखिए, गेटिंग स्टार्टेड इज द की। Unfinished tasks in the organization are the biggest cause of stress and misery in the organization. जो अनफिनिश्ड टास्क हमारे रह जाते हैं, उससे मिजरी और स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। तो जो काम आप हाथ में लेते हैं उसको फिनिश करने की आदत डालो। डेवलप ए टेंडेंसी टू डू इट नाउ, मुझे अभी करना है। गेटिंग स्टार्टेड, देखिए एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago. क्या बोलते हैं? द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago, and the second best time
टू प्लांट ए ट्री इज नाउ। बोले अगर आपको एक पौधा लगाना है उसका बेस्ट टाइम कब था? 20 साल पहले था। और अभी सेकंड बेस्ट टाइम कब है? अभी है, इस क्षण है, अभी अभी, नाउ नाउ नाउ, अभी पौधा लगाओ। हमारा अंदर एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं इट कैन नॉट हैपन विथ मी सिंड्रोम, ये मेरे साथ नहीं हो सकता सिंड्रोम। जब हम सोचते हैं कोई हमारा कोई फ्रेंड है उसकी हार्ट अटैक से कुछ डेथ हो गई तो हम सोचते हैं चलो हमको अभी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है। जब देखते हैं कोर्ट में तलाक की अर्जियां ज्यादा बढ़ती जा रही है तो हम रिलेशनशिप को ध्यान देते हैं। जब देखते हैं कि कुछ बैंक करप्ट हो रही है, बैंक के और म्यूचुअल फंड डूब रहे हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। मतलब हम वो लोग वेकअप कॉल का वेट करते हैं, कुछ वेकअप कॉल होगा तब हम कुछ करेंगे। दोस्तों वेकअप कॉल का वेट नहीं करना है, प्रोएक्टिव होना है। अगर हमें हेल्थ पे ध्यान देना है तो हमें आज से वॉक करना है। इस सेमिनार को, इस वेबिनार के खत्म होने के बाद पहला कदम उठाना है कि आज हमें 1 घंटे वॉक करना है। कल कभी नहीं आएगा जीवन में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होगी, बहुरे करेगा काम। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि जो लोग काम टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनको दीर्घ सूत्री बोला, भगवान ने उनको आलसी बोला है, उनका कभी उत्थान नहीं हो सकता है। काम को टालना इज द डिजीज, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द डिजीज। तो जो काम कल करना है उसे आज करना, अभी कदम उठाओ। स्वीट दिवाली के बाद में स्वीट छोड़ूंगा, नो, अभी स्वीट छोड़ेंगे। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करनी है, अभी करना है। अभी जाओ अपनी वाइफ को लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, गले लगाओ। हमारी आदत क्या है, हम स्नूज बटन, हमारे मोबाइल में स्नूज बटन होता है, उसको हम हिट करते रहते हैं। 6 बजे का हमने अलार्म भरा, 6 बजे मोबाइल बजा, हमने स्नूज बटन को हिट किया, फिर 6:10 पे अलार्म, फिर हमने स्नूज बटन, फिर 6:30 पे फिर स्नूज, 4-5 बार हम स्नूज बटन को हिट करते हैं। 6 बजे हम उठने वाले थे, 7 बजे हम उठते हैं। रिसर्च हुई है इस 1 घंटे में ना तो हम सो रहे हैं ना हम जग रहे हैं। अगर आपको 7 बजे उठना है तो 6 बजे का अलार्म भरने की क्या जरूरत है? 7 बजे का अलार्म भरिए ना, कम से कम 1 घंटा ज्यादा सो तो पाएंगे हम लोग। दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अपने मोबाइल से, अपनी अलार्म क्लॉक से और अपनी जिंदगी से इस स्नूज बटन को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। दोस्तों अगर इस वेबिनार का टेक अवे तो यही है, ये स्नूज बटन को परमानेंट डिलीट कर दीजिए। दोस्तों आज ही, इस क्षण जो भी कार्य करना है इस क्षण करना, अभी मुझे शुरू करना है। अगर आपको एक बुक लिखनी है तो आज उसका पहला पेज आज लिखना है। अगर आपको म्यूजिक सीखना है तो उसकी पहली लाइन आज सीखना है। अगर आपको कुकिंग करने का शौक है तो मुझे आज खाना जाके घर में मैं वाइफ को मैं पहले खाना बनाऊंगा। जो काम करना है आज से शुरुआत करनी है। देयर इज नो टुमारो, कल का कोई वेट मत कीजिए, ये स्नूज बटन को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों देखिए, इफ अगर आपके पास समझिए सिर्फ 6 महीने हैं तो क्या करेंगे? अगर कोई बोले आपके पास सिर्फ 6 महीने तो क्या करेंगे? कोई बोलेगा मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताना चाहूंगा, उसको वो मूवी दिखाना चाहूंगा जो मैं 20 साल से नहीं दिखा पाया, उसको हाथ में हाथ लेके मैं उसके साथ डेट्स में जाना चाहूंगा जो मैं 20 साल पहले उसके साथ गया था। मैं अपनी माँ के साथ एक दिन बिताना चाहूंगा, वो माँ जब मैं बच्चा था मेरे नाक पे क्रिकेट बॉल लग गई थी, मेरी नाक सूज गई थी, उस रात मैं सोया लेकिन मेरी माँ नहीं सो पाई। वो मुझे भिंडी की सब्जी बना के खिलाती थी क्योंकि उससे मेरी मैथमेटिक्स की स्किल शार्पन होती है। उस माँ को मैं 20 साल से इतना प्यार नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, इतना बिजी था अपनी लाइफ में, तो मैं एक दिन अपनी माँ के साथ बिताना चाहूंगा। मैं उन सब लोगों को एक माफीनामा लिखना चाहूंगा जिनका मैंने दिल दुखाया है। आई वॉन्ट टू सेंड ए ईमेल टू देम, ए सॉरी लेटर टू देम whom I hurt in my life. I want to say I love you to everyone. दोस्तों ये 6 महीने अगर जीवन में तुम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वी डू नॉट नो व्हेन these last 6 months are there. हमें कुछ नहीं पता ये लास्ट 6 months कब हमारे जीवन में होंगे। Your time starts now. जो करना है अभी करो। फोन कॉल करना है सारे दोस्तों को। ये लॉकडाउन पीरियड इसलिए नहीं आया है कि आप मूवी देखिए, न्यूज देखिए। न्यूज चैनल तो देखना ही नहीं है। 24 आवर्स में से हम 15 घंटे न्यूज चैनल देखते हैं, विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अवर स्ट्रेस। अगर हमको स्ट्रेस जीवन में आ रहा है तो न्यूज चैनल से आ रहा है। 12 घंटे 15 घंटे न्यूज चैनल देखते हैं। सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को न्यूज चैनल देखना है, इससे ज्यादा नहीं। मूवी नहीं, सीरियल्स नहीं। क्या करना है? हमें फिटनेस में ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना है। जिन लोगों को हमने दुख दिया उनको फोन करके सॉरी बोलना है, सबको आई लव यू बोलना है, हक करना है। जाओ अपनी, हो सकता है 20 साल से अपनी वाइफ को भी आई लव यू नहीं बोला, जाओ अभी उनको आई लव यू बोल दो।
Go and hug her. Go and hug your father. Go and hug your mother. Go and hug your sister. Go and hug your daughter. Son, your son is waiting to talk to you for 2 hours. Your daughter is waiting to talk to you. You don't have time. इतना बिजी आप अपने जीवन में रहे. ये लॉकडाउन पीरियड आया है, आप सबके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, उनको एक नई दिशा, अपनी रिलेशनशिप को एक नई दिशा दीजिए. दोस्तों, ये लॉकडाउन इसके लिए आया है. If we have 6 months only, our time starts now. दोस्तों, 10-15 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखूंगा, इसलिए अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा. और उसके पहले एक सुंदर सी कविता आपको सुनाना चाहूंगा कि चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है. एक आगे रहता है, एक पीछे. एक आगे रहता है, एक पीछे, पर ना आगे वाले को अभिमान, ना पीछे वाले का अपमान. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पल भर में ये बदलने वाला है. जो पैर अभी आगे है, पल भर में दूसरा पैर आगे होने वाला. चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है. एक आगे रहता है और एक पीछे, पर ना आगे वाले को अभिमान और ना पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाला है. इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्तों. गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर. जो हो गया, फॉरगेट द पास्ट. पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री. क्या फायदा पास्ट याद करने से? क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं. गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर. तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर. अरे जो हमारी तकदीर में लिखा हो के रहेगा, तो बाकी सब हम अपने कर्म से अपनी तकदीर लिखते हैं. मैंने आपको बोला था ना कि व्हाट एवर यू आर टुडे इज द आउटकम ऑफ योर पास्ट. व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुमारो विल बी डिसाइडेड बाय योर टुडे. आपका एवरी डे आप अपनी कल की तकदीर लिख रहे हैं. तकदीर कहीं भगवान नहीं लिखता, हमारे कर्म हमारी तकदीर लिखते हैं. हमारा अगला 5 साल कैसे जाएगा, हमारा आज डिसाइड करेगा. सो गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर. तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर. जो होना है होकर ही रहेगा. तू कल की फिक्र में आज की खुशी को बर्बाद मत कर. दोस्तों, हंस मरते हुए भी गाता है. हंस मरते हुए भी गाता है. मोर नाचते हुए भी रोता है. हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है. यह जिंदगी का फंडा है दोस्तों. दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशियों वाली रात कौन सोता है. खुशियों वाली रात कौन सोता है. थैंक यू सो मच. नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स. दैट्स रियली अमेजिंग सर. बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंस्पायरिंग रियली एक कविता लगी मुझे, और एक गूज़बम्प्स मिले हैं कुछ लाइव में करने के लिए. दैट्स रियली ग्रेट सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही शानदार कविता. मैं भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखता था पहले. और मैं पहले बहुत कुछ करता था सर, और अब कुछ नहीं कर पाता. और मैं टाइम मैनेजमेंट लोगों को सिखाता रहता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो हमारे कार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे. अरे कहने दो ना लोगों को. आप अपने देखिए, आप सोचो, एक संकल्प लो और उस पर आगे बढ़ो. बस आपका संकल्प अगर मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती. लेकिन अगर आप दूसरों की बातों पे जाओगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते. बस खुद पे भरोसा रखो. बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं. बिल्कुल ठीक सर. सचिन जी, सर एक क्वेश्चन है मेरा भी. हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, पर सर कई बार देखा लाइफ में मतलब कि मल्टीपल गोल्स से बन जाते हैं, राइट. तो मेरे को लगता है कि जैसे वो भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है कि यार मेरे को ये भी अचीव करना है, मेरे को ये भी करना है. लाइक लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जी सर. मेरे खुद के दिमाग में इतने गोल्स में बना के रखता हूँ, और आखिरी में लगता है कि ना मैं ये कर पा रहा हूँ, ना मैं वो कर पा रहा हूँ. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. मैं भी बिल्कुल एग्री हूँ इससे, क्योंकि कहा जाता है कि एक तरफा माइंड सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है, लेकिन हमारी लाइफ इस तरह से है ही नहीं आज के टाइम में कि हम एक तरफा काम कर सके. मल्टीपल गोल्स को हम साथ में काम करने के लिए ना कैसे उसको प्लान करें या कैसे उसको मैनेज किया जाए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. वही बेसिकली वही हमारे मल्टीपल गोल हैं और लाइफ छोटी सी है. तो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा विवेक जी. देखिए, हम मल्टीटास्कर हैं, इसीलिए हमारे मल्टीपल गोल्स हैं. पहले तो हमें भरोसा है कि हम मल्टीटास्कर हैं. वी कैन डू सो मेनी थिंग्स एट ए टाइम. ये भरोसा हमें होना चाहिए. अब जो मल्टीपल गोल्स है, उसमें जो बाधा आती है ना, वो सिर्फ एक ही चीज की है, वो है प्रायोरिटाइजेशन की.
हमें प्रायोरिटाइज करना है, सारे गोल्स को एक कागज पे लिखिए और प्रायोरिटाइज करिए। और देखिए उसमें एक जो दूसरी बात है प्रोक्रेस्टिनेशन की, जो चीज डिफिकल्ट होती है हम उसको टालते हैं। कल मेरे ख्याल से मुकेश जी ने भी पॉइंट कवर किया था, मुकेश जी ने इसी हाँ बारे कल में इस पॉइंट को कवर किया था, जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है वो पहले कर डालो, बाकी सब इजी है, उसी को हम टालते हैं और वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाता है। जितने भी गोल्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज करो, ये गोल मुझे 1 दिन में पूरा करना है, ये 2 दिन में करना है, 7 दिन में करना है, ये 1 महीने में करना है। वो जो डिफिकल्ट है उसको पहले कर लो, बाकी सब तो इजी है। और जब उसको पहले कर लिया तो आपको ऐसा लगे एकदम रिलीफ हो जाते हैं आप। और देखिए एक इसमें मैं प्रिंसिपल बोलूंगा, इसको बोलते हैं सलामी प्रिंसिपल, उसका नाम क्या, सलामी प्रिंसिपल। इफ यू वांट टू ईट केक, कैन यू ईट होल केक एट ए टाइम? अगर आपको केक खाना है तो पूरा केक खा सकते हो क्या? नहीं। व्हाट यू डू, यू कट द केक इनटू द पीसेस, उनको पीसेस में काटते हो और एक पीस एक बार में खाते हो। बस ये ध्यान रखो, जब आपको बहुत सारे काम करना है तो उनको प्रायोरिटाइज करो, हर कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित करो और एक बार में एक कार्य को करो। एक पीस खाओ, फिर दूसरा पीस खाओ, फिर तीसरा पीस खाओ। हम सारा कार्य एक साथ करेंगे कभी नहीं होगा। एक बार में एक चीज पे फोकस करो, उसको फिनिश करो, अनफिनिश कुछ मत रखो। मैंने आपको बोला प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, अनफिनिश कुछ मत रखो, उसको खत्म करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो एकदम इजीली सब काम होने लगेगा। और सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है सर, अगर एक काम आपका पूरा हो गया ना, आप मोटिवेट हो जाते हैं। एकदम सही काम मुकेश जी आपने, बहुत बढ़िया। और वो लगता है कि अपने आप को कुछ रिवार्ड सा मिला है। जी बिल्कुल सही तो आप काम को पूरा करने की आदत डालना जैसे शुरू करेंगे जी सर, आप मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। परफेक्ट परफेक्ट। चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, वो एक एकदम बार सही। पूरा हो गया ना, उसको सेलिब्रेट भी कीजिए। जैसे ही पूरा होता है बस खुशियां मनाइए। चाहे वो छोटा काम है तो छोटा सा सेलिब्रेशन, बड़ा काम है तो बड़ा सा सेलिब्रेशन। ये एकदम सही। सेलिब्रेशन जब शुरू कर देंगे तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। और सर मेरे को लगता है कि लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाहत और लाइक मेरे को क्या पाना है बेसिकली, राइट। मैं लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ये बन जाऊँ, बट उसके लिए मैं कुछ एफर्ट नहीं कर रहा, तो जस्ट ऐसी मेरी एक विश सी है बेसिकली, उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, राइट। मैंने इतनी सारी विश पैदा करके रखी हुई हैं जिसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो ठीक है, मिले मिले ना मिले ना मिले, तो जाने की मैं कभी चाहता ही नहीं उसको बेसिकली। विवेक जी मैंने आपको बहुत सिंपल बात बोली थी, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपने कोई सपना देखा उसे पूरा करना है तो आपकी नींद उड़ जाएगी अपने आप बॉस। अगर आपकी नींद नहीं उड़ रही तो सपना है ही नहीं, वो तो फिर आप मुंगेरी ला लो, मुंगेरी लाल के ऐसे सपने देख रहे, कुछ होने वाला नहीं है। राइट राइट राइट। तो सपना देखा है तो नींद अपने आप उड़ेगी सर। मुझे आज ये वेबिनार करना था, मेरी रात से नींद उड़ी थी, मुकेश जी का वेबिनार देखने के बाद तो मेरी नींद पूरी उड़ गई। इतने बड़े ऑडियंस, इतने महान महान हस्तियों के सामने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने बड़े प्रोफेशनल के सामने मुझे बोलना है, मेरी नींद उड़ गई। मैंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया, मैं कभी नोट्स नहीं बनाता, कभी नहीं नोट्स बनाता, मैं हमेशा एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। मैंने नोट्स बनाए, भाई कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब आपका कुछ गोल होता है तो नींद तो अपने आप उड़ जाती है, अपने आप तैयारी करते हो। मैं आपको बोलता हूँ मैंने 1100 सेमिनार किए, मैं कभी कोई पावर पॉइंट और नोट्स को रेफर नहीं करता। मैंने पहली बार इस वेबिनार के लिए नोट्स बनाए, आप देखिए क्यों, क्योंकि नहीं मेरे को लगा नहीं, मेरा किसी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी ने मुझ पे, ऋषु जी ने, आपकी पूरी टीम ने मुझे भरोसा दिखाया है, तो मुझे आपके भरोसे पे खरा उतरना है। मेरे को आप लोगों के बीच में आप मुझे लेके आए हो, एक भरोसा आपने मुझे दिया है ना, उस भरोसे पे अगर मैं खरा नहीं उतरा तो फिर मैंने आपके साथ इंजस्टिस किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है। उस भरोसे को पूरा करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया सर, जरूरत नहीं थी, बट किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरे पास एक व्हाट्सएप पे आया है सर क्वेश्चंस ऑडियंस से कि आप पूछ लीजिए इसको। उन्होंने बोला कि मेरा जो नेचर है वो किसी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने का नहीं है। जी सर। बट सम ऑफ देम जो हमारे सर्कल में हैं या हमारे जो जानने वाले हैं, वो जानबूझ करके या तो हमें आते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या हमारे टीम में एंटर करते हैं और हमारे टीम मेंबर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे आपको इंटैक्ट रहा जाए और उभर के सामने आना चाहिए? इग्नोर सर, इग्नोर। देखिए पहली चीज तो आपको मैंने आपको बताया 4 तरह के लोग होते हैं, सुपरस्टार्स, डूअर्स, टाकर्स एंड ट्रबल मेकर्स। तो अगर वाकई में वो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रबल मेकर्स हैं, वाकई में अगर वो बैड एप्पल हैं, तो उनको तो फिर आपको कॉल लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको लगता नहीं यार वो बैड एप्पल भी नहीं है, बहुत बड़े परफॉर्मर भी है। देखो जो जितना बड़ा परफॉर्मर होता है ना, उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसको थोड़ा ज्यादा सहन करना पड़ता है। देखिए मैं अपनी अनुभव देता हूँ, मेरे ऑफिस में 2 जने बड़े परफॉर्मर थे, लेकिन उसमें एक जना इतना रूड बिहेवियर करता जिसका कोई हद नहीं, लेकिन मुझे उसको सहन करना पड़ता था। क्यों भाई, वो परफॉर्मर है,
छोड़ना, वो परफॉर्म करके मुझे बिजनेस लाके दे रहा है ना। अगर रूड कर रहा है तो करने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। एम आई कंसर्न विद द बिहेवियर, आई एम कंसर्न विद द रिजल्ट। मेरा फोकस तो रिजल्ट पे भाई। वो मुझे 1 करोड़ का सेल महीने का लाके दे रहा है ना, तू 10 गाली बकरा 20 बकले भाई, मुझे 1 करोड़ का सेल लाके दे, खत्म। मेरा फोकस मेरे टास्क पे है। आई एम टास्क ओरिएंटेड पर्सन। तो 20 क्या 40 गाली दे दे, लेकिन मुझे बिजनेस लाके दे। लेकिन कोई बिजनेस भी नहीं ला रहा है, परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, गाली भी बक रहा है, तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा। आप अपने कर्म करते जाएं और बस। सामने वाले जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको इग्नोर करते जाएं। तो देखिए, एक और मैं आपको बात बोलता हूँ, जो एंगर है ना, जो हम कभी गुस्सा होते हैं, ये गुस्सा क्या है? इट इज एन पनिशमेंट वी आर गिविंग टू अवरसेल्व्स फॉर अदर्स मिस्टेक। दूसरों की गलती पे खुद को सजा देना गुस्सा है। बेवकूफी, क्या सजा देना भाई? किसने गलती करी, आप गुस्सा कर रहे हो, क्यों भाई? यस यस आप अपने आप को सजा दे रहे हो। मैं कर लूं। और ये जो सर मुकेश जी, शुभम भाई, मैं एक चीज कह दूंगा कि आप बाकी जो पार्टिसिपेंट है ना उनको आप क्वेश्चन करने के लिए ओपन कर दीजिए, Sure, अनम्यूट कर दीजिए। तो अगर वो चाहे तो आके पूछ सकते हैं, तब तक हम आपस में थोड़ी सी बात करते रहेंगे। सबको अलाउ कर दीजिए क्वेश्चन करने के लिए। सर वो डिस्टर्बेंस हट गई है, अब आगे। जी सर। तो जो आपने बोला ना, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ठीक है, उनको इग्नोर करो। और देखिए, कभी हमको ये गुस्सा कभी नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा क्या है? दूसरों की गलती की सजा खुद को देना है, नंबर 1। नंबर 2, Yes. ये बदला लेने की भावना हमें कभी नहीं रखनी सर। यस यस मैं एक आपको लाइन बोलता हूँ, रिवेंज गेम इज ए गेम विच नेवर एंड्स, प्लेयर डाइज गेम कंटिन्यूस। बदला लेने का गेम कभी खत्म नहीं होता है। बदला लेने वाले मर जाते हैं और गेम चालू रहता है। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हमें ऐसा गेम खेलना है क्या? नहीं। जिसने किया वो उसका कर्म, हमें अच्छे कर्म करते जाना है भाई। आप अपने बस। कुल्हाड़ी को बस शार्प करते बस रहिए बस बीच में। बस मुकेश, बस सर खत्म। और जो आप रिवेंज की बात कर रहे हो ना, अगर आप कभी रिवेंज लेना चाहेंगे भी तो लाइक माइंड हमारा ही डिस्ट्रैक्ट रहता है। एग्जैक्टली। मतलब कि हम ही डिस्टर्ब रहते हैं, तो फायदा कुछ नहीं है उसका। कुछ फायदा नहीं है सर। प्रोडक्टिविटी खत्म, जीरो, खत्म। हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सर, हमारा कीमती समय जाया कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सजा देने का काम हमारा नहीं है, ऊपर वाले का। वो बराबर देगा, और बराबर देता ही है यार। आप अपनी लाइफ स्टोरी उठा के लास्ट 10 साल में देख लो, जिसने गड़बड़ किया सबको बराबर सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। आप देख लो, आपको अपनी लाइफ स्टोरी, किसी की दूसरे की मत देखो, खुद की देखो। लास्ट 20 साल में देख लो, जिन जिन लोगों ने आपके साथ क्या किया, वो कहाँ है आज और कहाँ है, क्या कर रहे एकदम से हैं। ईश्वर के नॉट डूइंग जस्टिस विद एनीबॉडी। ईश्वर सबके साथ जस्टिस करता है, बस। आम का पेड़ बोया तो आम ही आएंगे, बबूल थोड़ी आएंगे सर। सही बात है। सचिन जी। यस सर। सर बहुत अच्छा, मतलब आज का जो सेशन था वो कंटेंट भी बहुत अच्छा था, और एनर्जी था सर का, उसका कोई जवाब नहीं है सर। और बीच में जो सर की वो पंच लाइन्स आ रहे थे, उसको तो 2-3 मैंने इमीडिएटली पिकअप कर लिया। और सर आपका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि WIP इसको कैसे हम लोग को मिनिमाइज करना चाहिए। जी सर। हम लोग सारे प्रोफेशनल हैं, और जितना WIP होगा वो हमारे लिए लॉस को बढ़ाता है। एग्जैक्टली सर। हमारे ऑफिस में सर एक कल्चर है जी सर, कि जो काम आपको सुबह मिला वो शाम को आपको खत्म करके जाना है, और परफेक्ट। अगर आप शाम को खत्म नहीं कर पाते हैं तो आपको WIP रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है। वाओ, दैट्स अगर गुड। आप यस सर, तो जो मेरा टीम मेंबर है वो मुझे बताया कि सर इस कारण से खत्म नहीं हो पाया। उसमें 2 रीजन हो सकते हैं, या तो क्लाइंट के कारण खत्म नहीं पाया या हमारे कारण खत्म नहीं हो पाया। जी सर। अगर क्लाइंट के कारण खत्म नहीं हो पाया तो हम इमीडिएटली क्लाइंट को फोन करते हैं कि ये हमें कल क्लोज करना है। अगर कल क्लोज होने लायक सिचुएशन है तो वाओ, फिर क्या होता है कि हमारे जो बिलिंग टाइम है वो हमें पता होता है कि इस काम कल खत्म होगा तो उसकी बिलिंग हो जाएगी। वेरी गुड, परफेक्ट ये सर। हमने सर एक अपना सिस्टम बना रखा है अपने ऑफिस सर ये सबको शेयर कीजिए सर, बहुत अच्छा सिस्टम है सर। ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को खा जाता है सर, दीमक के जैसे अनफिनिश्ड टास्क जो होते हैं, WIP जो होते हैं ना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दीमक के जैसे खा जाते हैं सर। आ जाते हैं, यस। पता नहीं लगता सर। और एक जो हमने सर आपने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि अपने जो टीम मेंबर्स हैं उसको आप सबके सामने अप्रिशिएट कीजिए। यस सर। अगर उन्होंने कोई अच्छा किया तो ये हमने कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है। वेरी गुड सर। किसने अगर अच्छा किया तो उसको उसी से वहां पे जाके सबके सामने उसका अप्रेज करते हैं। वेरी गुड। और अगर कोई आर्टिकल जैसे हम लोग लिखते हैं उसमें किसी को सपोर्ट लेते हैं तो हम उसमें उसका भी नाम डालते हैं कि इसने मुझे सपोर्ट किया है, ताकि उसका भी फोटो उस पूरे आर्टिकल में आए और वो सब जगह सर्कुलेट करे। ये मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ सर आपका। यस, आपके आर्टिकल में उससे किसी न क्या किसी होता का है एक का होता है। उस पर्सन को
काफी मोटिवेशन मिलता है कि मेरा नाम प्रिंट हुआ, मेरा फोटो Yes, आया, sir. तो वो सर्कुलेट करता है, मतलब वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहा है। सचिन जी से भी काफी सीखने को मिलेगा हमको लगता है। सर आपसे जुड़े रहे, बस यही दुआ है कि आप लोग हमें मेरे को जोड़ के रखें सर। सर आप लोगों से सब सीखने को मिलेगा सर। मैं तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ सर। बहुत अच्छा रहा सर आज का, हाँ। फुल ऑफ एनर्जी। एक बार मैंने पवन सिन्हा जी को सुना था, डॉक्टर पवन सिन्हा जी सर। वो भी मोटिवेशनल गुरु हैं, न्यूज चैनल पे भी आते हैं। जी सर। आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपका जो फेस है एकदम काफी लगता है कि मेरे सामने पवन सिन्हा जी बैठे हुए हैं। सर आपका बड़प्पन है सर। जबरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक, एकदम लग रहा था कि 30 साल के जो जवान लोग हैं। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ा एनर्जी से बात वो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया सर आपने तो। नहीं मुकेश जी, इसमें ना ऐसा लग रहा था शानदार रहा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ। सर आज ऐसा लग रहा था वेबिनार नहीं और सेमिनार। आपका जो ऋषि जी, हाँ ये लग रहा है फेस टू फेस हो रही है बातें, और सेमिनार वाला फीलिंग, वो फेस टू फेस सेमिनार वाला फीलिंग आ गया एकदम। क्योंकि नहीं तो क्या होता है सर, प्रेजेंटेशन एक चालू रह जाती है और बातें रह जाती है, बट आज जो एनर्जी थी जी और सर, आपकी जो दो स्पेशल बातें मेरे को याद रहेगी हमेशा की, एक तो आपके एम्प्लॉइज के अंदर वो विजन का डीएनए होना चाहिए, जो उसके पास है वही विजन है। जी सर, बिल्कुल नहीं मुकेश जी? एकदम यस सही सर, है। यस एकदम। और ये आज डबल, मैं बता रहा हूँ आपको, डबल सेमिनार हो गया ना, एक आपका प्लस इनका, कल वाला आपका और ये आज का, तो मेरे को लग रहा है 2.0 हो गया ये। नहीं, मैंने तो आज मुकेश जी के सेमिनार से एक बहुत चीजें उठाई थी कल मैंने। उनको भी थोड़ा आगे बढ़ाया, मैंने कहा बहुत अच्छा उन्होंने बोला था डेलीगेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया। तो ये सब बहुत सही रहा। मैं 2 लाइन, आपने मेरी कविता वाली बातें जगा दी है, तो 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा और इसके बाद इसको खत्म करेंगे। हम लोग माहपारे नहीं, मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, हम लोग माहपारे नहीं, आकाश के तारे नहीं, हम में यही है खासियत कि हर हाल में हारे नहीं। सपने हमारे आंख के टूटे बहुत इस दौर में, सपने हमारे आंख के टूटे बहुत इस दौर में, फिर भी तुम्हें किसने कहा सपने हमें प्यारे नहीं। वाह, हम लोग महपारे नहीं, आकाश के तारे नहीं, हम में यही है खासियत हर हाल में हारे नहीं। वेरी गुड सर, मुकेश जी बहुत बढ़िया। मुकेश जी का ये रूप सर हमने आपकी वजह से आज पहली बार देखा। ऋषि जी कल भी देखा था, कल मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं पहली बार इनका ये रूप भी पता लगा था कल। कल हमारे पास क्या आवाज नहीं आ रही थी ना, थोड़ा इश्यू था। अच्छा सर, मैं हम लोग जब चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स करते हैं ना, तो एक ट्रेनिंग होता है 15 दिन का जीएमसीएच। मैं भी जीएमसीएच का बाद में फैकल्टी भी रहा, लगभग 150 क्लास। सर मुझे जीएमसीएस में जाना है सर, आप पहुंचाइए ना सब लोग। अच्छा, तो जब मैं खुद का जीएमसीएच एज ए स्टूडेंट कर रहा था, तो हमारे बैच में 70 लोग थे। अच्छा। और उसमें 34 गर्ल्स थी। 15 दिनों में इतने कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने उन सब गर्ल्स के लिए अलग अलग 8-8 लाइन की एक कविताएं लिखी थी। ओह वाह, सबके लिए, सबका नाम मेंशन करके। अरे वो क्या लोग आज तक इतने कनेक्ट हैं, अभी भी जब भी कभी बात हो जाता है बोलते मेरा वाला कविता सुनाना एक बार। भाभी जी को आपने बताया था कि नहीं सर? उनके लिए कई कविताएं लिख दी है। तो कविताओं का शौक शुरू से रहा था। थैंक यू सर। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऋषि जी को खास तौर पे, कि जिन्होंने मुझे बिना जाने बिना सोचे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मेरा तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन था नहीं, सिर्फ एक ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था। तो आप लोगों ने इतना बड़ा मुझ पर भरोसा जगाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके भरोसे पे खरा उतराऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी तरह से ऊर्जा का संचार कर दिया है रगों में आपने आज। और हम चाहेंगे कि आप फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आएं,
किसी दूसरे टॉपिक के साथ और जी उससे सर। भी हमारा ज्ञान वर्धन करें। जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका। जब आप चाहेंगे मैं हाजिर हूँ सर आपकी सेवा में सर। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। मेरा एक बार सभी जीसीपी के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वे लाइन पर रहें, क्योंकि हम हमारी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। सर मैं लॉग आउट कर सकता हूँ? Yes, आप sir. कर सकते हैं। Yes, ठीक है sir. सर।